ठीक है, तो शॉर्ट में पहले रिवीजन कर लेते हैं. Suppose X is any non-empty set, and on this set, from this set, suppose any point A is fixed. Now we need to take collection of all those subsets of X which contains this fixed point A together with phi. So we have seen that this is going to form a topology. Also, this space is not Hausdorff. What will be derived set of this singleton A? This we have already computed. And we have computed the derived set of A is basically X minus A. ये हमने प्रूफ कर दिया था थर्ड वाला पोर्शन कि derived set, क्योंकि if X is limit point of this set, then every open set U containing A must intersect the set A other than X itself. So by applying that definition, one can see that when X equal to A, then only in that case this intersection is empty. Otherwise, for all other members from capital X, this intersection is always non-empty. So in this way, except A, every element of is the space X, capital X, is going to be its limit point. So I can say that A dash is equal to X minus A. A dash is equal to X minus A. So what will be closure of this set A? That will be closure of A. A union A dash, so A dash is X minus A. So you can see that closure of A is, the closure of this set A is X. Singleton A is X. This means singleton A is dense in X. ठीक है ना, तो हम लोगों ने यहां तक देख लिया था. अब इसमें फोर्थ पार्ट, और ये भी देख लिया था कि ये क्यों हाउसडॉर्फ होगा, क्योंकि अगर आप डेफिनेशन पे नोटिस करें तो सो if this space is not Hausdorff, then we need to show that there exists at least one pair of distinct element around which one cannot construct open sets containing them whose intersection is disjoint. So you can see that suppose X is not equal to Y. So if any set containing X must contain A as per definition, because only those sets are open which contains this fixed point. So if we choose whatever set we will choose, if it is open, then it has to contain A by definition. So U will contain A, V will contain A. Also, obviously, U will contain X and V will contain Y. But because they also contain, both contains A, so their intersection is going to be empty. Their intersection will never be going to be empty. So this is the reason why this space is not Hausdorff. ठीक है ना, यहां तक कर लिया था. अब हमने ये प्रूफ किया कि ये जो सेट ए है, जो सिंगलेटन ए है, ये डेंस है. सिंगलेटन ए को हम लोगों ने डेंस शो कर दिया ना, सिंगलेटन ए को यहाँ डेंस शो कर दिया. लेकिन क्वेश्चन ये है कि शो दैट एनी सबसेट deduce that open set except phi are all dense in T. ये पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी से पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी कहते हैं. लेट मी राइट हियर पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी. तो इसको जो है पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी कहते हैं. ऐसे याद रहेगा क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट ए को कंटेन करने वाले सारे सबसेट इसके ओपन सेट है along with phi, है ना. तो इस तरह याद रहता है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी. तो अब मुझे ये शो करना है कि any open set, whatever open set we are considering except empty set, all are dense in the topology. Means हर एक का क्लोजर क्या होगा, फुल स्पेस X. ठीक है ना. तो यहां तक तो क्लियर हो गया, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं था. नो सर. नो सर. तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप लोग. क्वेश्चन नंबर 4 और रिकॉल करें क्या क्या है, इसके बाद इसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं. मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूं, खुद से इसे ट्राई करें, उसका डिस्कस करते हैं. मैं पूछता हूं. हाँ, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4 पे आप लोग अपने व्यूज दें, क्योंकि आधा को पार्ट तो हम लोगों ने कर लिया ऑलरेडी. पहले तो डेंस का डेफिनेशन बताएं, उसके बाद चलिए कॉल बोलना चाहेगा आप लोगों में से. यस अखिलेश.
मुताहिर, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे प्रूफ करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, क्लास में पार्टिसिपेशन रखें, ऐसे नहीं होता कि वन साइडेड हो। मैंने वो क्वेश्चन पहले से ही दे दिया था, कहा था कि आप लोग पढ़ के आइएगा इसे। ये तो आपको कहीं ना कहीं हमेशा चीजें मिल जाएगी, लेकिन आपने कितना समझा है ये मैटर करता है ना। डिस्कशन कराने का मकसद क्या है? जावेद, नुमान, यस, गुलफराज। यस सर। क्या करेंगे गुलफराज, इसमें बताएं। सर डेंस के लिए तो हम लोग एक, जैसे कोई सेट को जो है अगर हम डेंस कहेंगे तो उसका एक क्लोजर निकालते थे। मान लेते हैं कि अगर कोई सेट ए है तो उसका क्लोजर निकालते थे, और वो जो है पूरा एक सेट के इक्वल आना चाहिए था। मतलब किस सेट की मतलब किस में डेंस जो देख जो रहे हैं? सेट अगर दिया गया है, जो सेट दिया गया है। हाँ हाँ, फुल स्पेस में देख रहे हैं तो फिर ए का क्लोजर एक्स होना चाहिए। हाँ। यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब दे आर लुकिंग इन एक्स इटसेल्फ। यस सर। ठीक है, तो तो यहाँ क्या शो करना है? यहाँ ये शो करना है कि एक्सेप्ट फाई एवरी ओपन सबसेट इज डेंस। यस एक्सेप्ट फाई एवरी ओपन सबसेट इज डेंस इन एक्स। सर ये सेट थोड़ा सा जो दिया हुआ है वो थोड़ा मतलब दिक्कत कर रहा है। ऐसे फाइनाइट सेट के लिए तो निकाल ही लेते हैं आराम से, लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है सर। यही इसीलिए मैं ये डिस्कशन करा रहा हूँ ना, क्योंकि वो तो देखो फाइनाइट सेट, वो उस पे टोपोलॉजी तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन जब अब आपको सिंपली ये प्रॉपर्टी यूज करना है तो आपका सारा फोकस यहाँ पे होना चाहिए, है ना। ये जो यस प्रॉपर्टी यूज करना है इस पे फोकस होना चाहिए। तो इसी तरह से, क्योंकि अब हर एक जगह आपको फाइनाइट सेट नहीं होगा ना, तो यस आप उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? बेसिकली मेन जो मैं ये डिस्कशन कर रहा हूँ, ये यही वजह है। देखो यहाँ पे, ठीक है, चलो इतना किया तो आगे भी समझ में आ जाएगी चीजें। अब आप ऐसा करो कि, एक मिनट, देखो डेफिनेशन आप लोग ना रिकॉल किया करो तुरंत, क्योंकि डेफिनेशन बार बार रिकॉल करोगे तो एक तो उससे दो फायदा होगा। एक तो आपको डेफिनेशन दो चार बार में याद हो जाएगा, भूलेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और हाँ, तो मैं ये कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 का जो सोल्यूशन है, मुझे ये प्रूफ करना है कि हमने क्या क्या प्रूफ किया। एक तो हमने ये प्रूफ किया कि ये जो ए डैश आया था, डेराइव्ड सेट ऑफ ए, ये क्या आया था निकल के एक्स माइनस है, ये हम लोग देख लिया था, है ना। और ए का क्लोजर कितना आया था? एक्स। ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पार्ट हम लोगों ने प्रूफ कर लिया था, ठीक है। अब मुझे ये शो करना है कि व्हाट एवर ओपन सेट वी विल कंसिडर एक्सेप्ट फाइव, सो लेट यू बी एन ओपन subset of x such that u is not equal to phi। सपोज करो u कोई ओपन सबसेट है और अपार्ट फ्रॉम phi, and I need to show that it is also dense in the topology, ये शो करना है। so by definition, as u is open, as u is open, this implies u must belongs to the topology। topology के मेंबर ही तो ओपन होते हैं। यस सर। And as per definition, whatever open set except phi, every open set has to contain the fixed point A। This implies A belongs to T, A belongs to U। यहां तक तो कोई डाउट नहीं किसी को? नो सर। है ना। देखो कोई भी ओपन सेट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी डिफाइन ही इस तरह है। हम ऐसे सबसेट का कलेक्शन ले रहे हैं। ओपन सेट वो होंगे जो इस पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट ए को कंटेन कर रहे होंगे। तो जैसे आपने कहा ओपन, इसका मतलब ए यू का मेंबर हो गया, ए यू का मेंबर हो गया, ठीक है। अब ये बताओ, ए यू का मेंबर, इसका मतलब ये भी तो है, आप कह सकते हो कि ये इसका सबसेट हो गया। इसमें एक एलिमेंट था, वो यहां पे भी यू में भी है, सो सिंगलेटन इज सबसेट ऑफ यू।
यस सर। है ना? ए बी का कब सबसेट, जब ए के सारे एलिमेंट बी में हो, तो ए में एक ही एलिमेंट ए ऑलरेडी यू में है, so this singleton is subset of. Now we know that if A is subset of B, then derived set of A is also subset of derived set of B dash. So just use this property. What we have here, A dash क्या निकाला है, यहाँ देखो A dash क्या निकाला था, derived set of A क्या निकाला था, x minus A. x minus a, इसका मतलब x minus A u dash के अंदर कंटेंट है ना, x minus A क्या है, u dash में कंटेंट है. तो अब यहां से देखो, और u dash भाई कोई भी सेट होगा, x का कोई भी सबसेट होगा, तो यहां से ये तो क्लियर है कि x minus a दिस सिंगलेटन सेट इज कंटेन इनटू डेराइव्ड सेट ऑफ u, और u dash तो x में है भाई, कोई भी सेट और उसका डेराइव्ड सेट x का तो हमेशा सबसेट होगा. ठीक है, सो दिस वन. नो व्हाट इज द, तो u dash क्या आएगा, अगर आपको u dash मालूम चल जाए, देखो एक्चुअल होता क्या ना कि अगर हमें u का क्लोजर निकालना है, हमारा टारगेट क्या है, u का क्लोजर निकालना, तो u मैं यहां लिख दूं, u का क्लोजर निकालने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, u यूनियन u डैश. भाई डेराइव्ड सेट अगर u का मालूम हो तो ले तो हम क्लोजर, और अगर इसका क्लोजर फुल स्पेस x आ गया और यहाँ u आर्बिट्री सेट है, तो हम क्या कहेंगे कि u इज डेंस इन x, u इज एन आर्बिट्री ओपन सेट, सो u इज डेंस इन x. तो हमारा इंटरेस्ट किसमें, u तो ऑलरेडी दे रखा है, प्रॉब्लम है u डैश हमें नहीं मालूम, तो u डैश डेराइव्ड सेट ऑफ u कैसे मालूम करेंगे. तो अब आपके पास यहाँ पे एक कंडीशन आ गया कि डेराइव्ड सेट जो भी होगा वो इनक्लोज होगा x माइनस ए और x में. ये नोटेशन आपको पहले ही बता चुका हूं, इस बुक में ये नोटेशन हम लोग किसके लिए यूज करते हैं. सो u डैश कैन बी x माइनस ए और u डैश कैन बी x. अब u डैश के पास दो ही, क्योंकि u डैश हैज टू कंटेन x माइनस ए, x माइनस सिंगलेटन ए, और u डैश विल बी कंटेन्ड इनटू x. तो ये दो कंडीशन हो गया. तो अब यहाँ पे आप केसेस बना लो, क्योंकि जैसे आपको u डैश मालूम चल जाएगा, आपको u क्लोजर मालूम चल जाएगा. और ऑलरेडी मुझे ये प्रूव करना है कि apart from phi every open set is dense in X, dense in the topology. देख लें, यहां तक सोच लें, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लें. So my aim is to find derived set. So you can consider here both, I mean suppose derived set is equal to full space x. देखो मान लो कि ये derived set जो है वो इसके इक्वल हो गया, तो उस केस में फिर क्लोजर कितना होगा, तो क्लोजर क्या होगा बाय डेफिनेशन x. वेरी गुड, u क्लोजर कितना होगा, दैट इज बाय डेफिनेशन u यूनियन u डैश, ये बीच वाला यूनियन है वो अंडरस्टूड है. सो इट इज इक्वल टू u यूनियन, और इसका u तो जो भी आ गया, ये x माइनस ए, x माइनस ए. अब देखो हर एक u में a तो है, क्योंकि u ओपन है, तो जैसे आप u लोगे बाय डेफिनेशन ऑफ दिस टोपोलॉजी इट हैज टू कंटेन a. तो u में a है और यहां नहीं, और ये यूनियन है, तो क्या हो गया फाइनली, ये फुल स्पेस x. मतलब u में a है और a के अलावा और भी एलिमेंट हो सकता हो, है ना, लेकिन a तो है और यहां से सिर्फ सिंपली a मिसिंग था, तो यूनियन पूरा क्या हो गया फुल स्पेस x. किसी को डाउट है? सर आपने u डैश को x मानना है, तो यहाँ पे x माइनस ए क्यों लिख रहे हैं? अच्छा u डैश को x लिया, गुड. तो ये तो पूरा फुल स्पेस x हो गया ना, वेरी गुड. यस सर. ये तो यहाँ तो ये तो जब u डैश को हमने x ले लिया तो ये तो फुल स्पेस x हो गया, तो u यूनियन x क्या हो जाएगा x. ठीक है ना, सेकंड केस. ऐसे देखो ये बिल्कुल सही, तो क्लास में अटेंटिव रहे. इन केस इफ u डैश इज इक्वल टू x माइनस ए, मान लो u डैश इसके इक्वल है, तो क्या होगा, तो फिर क्लोजर क्या होगा. Very good. Then again the same logic which I have discussed earlier. Then u closer, u union u dash, and u union u dash. U dash is x minus, we have assumed u dash as x minus singleton A. So let me write here. Now as per definition every open set has to contain A, and here A is not there, so in union this union will be again x. So whatever u dash be, either u dash has only two choices, either it will be equal to x or u dash will be equal to, I mean derived set either will be equal to full space x or derived set has to be x minus a.
So in both cases you can see that u dash is equal to x full space x. u dash क्या हो रहा है, मतलब u क्लोजर कितना है, क्लोजर ऑफ u इज फुल स्पेस x. तो इसका मतलब, और u आपने क्या लिया था, u आपने कैसा लिया था, नॉन एम्प्टी, और u आर्बिट्री था. सो एवरी ओपन सबसेट इन पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी इज डेंस इन x. एवरी ओपन सबसेट इन पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी इज डेंस इन x. ठीक है ना. ये जो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या शो कर, डिड्यूस दैट ओपन सेट एक्सेप्ट 5 आर ऑल डेंस इन T. हर ओपन सेट पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी में क्या होगा, डेंस होगा. तो वो पार्ट हो गया, यू क्लोजर कितना हो जाएगा, डेंस इन x. चलिए अब ये नेक्स्ट करें इसको. क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट एनी सबसेट ऑफ x, यहां छूट गया x, ऑफ x इज आइदर ओपन और क्लोज्ड इन T. यहां पे एनी सबसेट ओपन नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एनी सबसेट. x का कोई भी सबसेट अगर वो ओपन है तो टोपोलॉजी का मेंबर होगा, इट हैज टू कंटेन ए, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है को कंटेन करे, है ना. क्योंकि टोपोलॉजी के मेंबर कैसे हैं, जो भी ओपन सेट्स हैं दे हैव टू कंटेन. ये तो टोपोलॉजी डिफाइंड इस तरह, तो आपको इस तरह सोचना है. बट हियर वी नीड टू शो दैट एनी सबसेट whether it is open or not, every subset of x is either open or closed in T. कोई भी टोपोलॉजी का मेंबर कोई भी x का सबसेट लें हम, वो या तो ओपन होगा या क्लोज्ड होगा. चलिए इस पे सोचे फिर डिस्कशन करते हैं इस पे. चलिए आप में से कोई बताए क्या होगा, क्या करें, कैसे सॉल्व करेंगे इसे. सर यू तो जितने यू जो ए को कंटेन कर रहे हैं वो तो ओपन है. अगर हम ये शो कर दें कि x माइनस यू क्लोज्ड है तो प्रूफ हो जाएगा. हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, सही अप्रोच है. बताइए उसके सारे कॉम्प्लीमेंट क्लोज होते हैं इसलिए. नहीं तो कॉम्प्लीमेंट क्यों क्लोज होंगे सर क्लोज की फॉर्म, हाँ क्योंकि यू आप ओपन ले रहे हैं ना. डेफिनेशन से जो सारे कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे क्लोज हो जाएंगे, तो सारे एलिमेंट्स उसके एक्स के ओपन या क्लोज हो जाएंगे. हाँ गुड. तो देखो अब यहाँ पे मैं यहीं पे लिख देता हूँ उसके क्वेश्चन नंबर. ये आप लोग की स्क्रीन विजिबल है ना. यस सर. मैंने थोड़ा सा साइज इसका रिड्यूस कर दिया. एक्चुअली मैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन सामने रहता तो समझाना आसान होता. तो मैं ये कह रहा था कि जैसे क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट एनी सबसेट ऑफ x इज आइदर ओपन और क्लोज्ड इन T, है ना. T हियर स्टैंड फॉर टोपोलॉजी. तो अगर आप टोपोलॉजी देखो तो टोपोलॉजी के मेंबर्स क्या हैं, कौन कौन से ओपन सेट, एक तो फाई है एंड ऑल दो सबसेट ऑफ x व्हिच कंटेन्स दिस पर्टिकुलर पॉइंट A. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई भी सबसेट ले रहे हो, है ना, कोई भी सबसेट एक ले रहे हो, मान लो लेट बी बी सबसेट ऑफ x, है ना. मैंने अभी ये नहीं कहा कि बी ओपन है, हमने कहा कोई भी सबसेट. यहाँ पे एनी सबसेट लिखा हुआ है ना, एनी सबसेट. तो अगर आप कोई भी सबसेट ले रहे हो x का, तो वो क्या होगा, उस पे क्या कंडीशन होगी, इफ इट इज ओपन देन इट हैज टू कंटेन ए, if it is not open then it may contain a or it will not contain a, because as per definition all any set which contains a is going to be open. So let Yes, v sir. be subset of x, let b be subset of x. सर थोड़ा नीचे लिखिए, दिख नहीं. ये स्क्रीन विजिबल नहीं है आप लोगों को. सर विजिबल है लेकिन आप थोड़ा ऊपर लिख. अच्छा चलो मैं यहाँ प्रूफ कर देता हूँ, यस सर, यहाँ से दिखेगा. या नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ. चलो ठीक. नहीं सर, ऊपर से ही कर दीजिए, एंड के नीचे से शुरू कर दीजिए. चल मैं चाह तो बाद में आपको पीडीएफ भी शेयर करना, तो मिटा दूंगा तो फिर वो चीज रहेगी नहीं. अब सही है, देखो स्क्रीन और छोटा कर दिया, ये विजिबल होगा. हाँ. सो सपोज बी सबसेट ऑफ एक्स, सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर दिस बी. सर बी इज एम्प्टी. This implies either A belongs to B or A does not belongs to It B. does not belongs to B. है ना, A does not belongs to B. ये समझ में आ गया ना. ऐसा क्यों होगा, क्योंकि B Yes, हमने sir. सबसेट लिया. If this subset is open then it has to contain A as per definition. It has to contain A. Otherwise it will not contain A. If it is not open it will not contain A. तो ये आपके पास दो choices हो गया. Then either A belongs to B or A does not belongs to B. Now case first,
if A belongs to B, then B is open. then by definition B is open. Then by definition B is open. As B belongs to T, है ना, क्योंकि B फिर T का मेंबर हो जाएगा। तो ओपन हो गया। इसका कॉम्प्लीमेंट के बारे में फिर क्या कहेंगे? अच्छा चलो, तो ये तो केस में ओपन हो गया। पहले पे हमें ये प्रूफ करना था या तो ओपन होगा या क्लोज होगा, तो कम से और लगा हुआ है ना यहाँ पे और, तो एक तो प्रूफ हो गया कि अगर ए को कंटेन करेगा तो बाय डेफिनेशन वो ओपन हो गया। केस सेकेंड, इफ ए इज नॉट इन बी, तो क्या होगा? ए अगर बी में नहीं होगा तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, है कि नहीं? अगर ए बी में नहीं होगा, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, and as per definition whatever be subset of X, if it contains A, then it has to be member of the topology, means it will be open always. So since A belongs to B complement, this implies B complement is open as per definition. Given topology, यहां तक डाउट तो नहीं किसी को? अगर B कॉम्प्लीमेंट भी तो सबसेट है ना X का। यस सर। तो ये अगर A कंटेन कर रहा है, इसका मतलब ये U की तरह बिहेव कर रहा है ना? Any subset U of X, if it contains A, then it will be member of the topology, और topology के मेंबर को हम ओपन सेट कहते हैं। तो B कॉम्प्लीमेंट में चला गया, इसका मतलब B कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया एज पर डेफिनेशन ऑफ गिवन टोपोलॉजी। जिस तरह ये टोपोलॉजी दी हुई है उसके हिसाब से बी कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया। अब ये बताओ, अगर ये तो आपको ऑलवेज ट्रू है ना, ये रिजल्ट इन एवरी टोपोलॉजिकल स्पेस अ सेट इज ओपन इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड एंड अ सेट इज क्लोज्ड इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। तो बी कॉम्प्लीमेंट ओपन होने का क्या मतलब हुआ कि बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड, और बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? इट्स बी। दिस इंप्लाइज बी इज क्लोज्ड। तो देखो, कोई भी आर्बिट्री सबसेट हो, या तो वो ओपन होगा या क्लोज्ड होगा, या तो ओपन होगा या क्लोज्ड होगा। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी में कंडीशन थी कि शो दैट एनी सबसेट ऑफ एक्स इज आइदर ओपन और क्लोज्ड। तो यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आ रही हैं कि एक तो हर एक ओपन सेट एक्सेप्ट 5 डेंस होगा गिवन टोपोलॉजी, पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी में। सेकंड, कोई भी अगर आप सबसेट लेते हो, सो आइदर इट इज ओपन और क्लोज्ड, आइदर इट इज ओपन। हालांकि ऐसा टोपोलॉजी आप देखो, पीछे हमने ये भी देखा था कि हो सकते हैं ऐसे भी सबसेट जो नाइदर ओपन और क्लोज्ड हो, है ना, या ओपन हो क्लोज्ड ना हो, या क्लोज्ड ओपन हो, या दोनों हो। लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी में तब क्या हुआ सर, यहाँ पे भी नॉन एम्प्टी लिया, अगर बी एम्प्टी ले ले तब? तो एम्प्टी सेट तो ऑलरेडी 5 का मेंबर है ना, एम्प्टी सेट तो ऑलरेडी टोपोलॉजी का मेंबर है ना, तो बाय डेफिनेशन वो ओपन हो गया। टोपोलॉजी का कोई भी मेंबर क्या होता है? ओपन। तो 5 तो ऑलरेडी वहां है ना, तो ओपन हो गया ना, तो इसी वजह से एम्प्टी सेट लिखा नहीं, क्योंकि वो भी ट्रिवियल हो गया ना, वो इसमें आ जाएगा ना। एम्प्टी सेट ए को कंटेन नहीं करेगा, है ना? क्या एम्प्टी सेट ए को कंटेन करेगा बताओ? ये किस सेकंड में आ जाएगा ना, चाहे तो यहां से देख लो या सिंपली यहां से देख लो। और वैसे भी देखो, फाई और एक्स तो किसी भी स्पेस में ऑलवेज ओपन और क्लोज होते हैं, तो उस पर डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, हमें प्रॉपर पे डिस्कशन करने की जरूरत होती है। देखो अगर नहीं समझ में आता ऐसे देखो, फाई यहाँ मेंबर है ना टोपोलॉजी का, ये ओपन हो गया, फाई क्लोज्ड भी होगा। क्यों? क्योंकि फाई, मान लो बी की जगह फाई रख दो, फाई इज नॉट गोइंग टू कंटेन ए, सो फाई इज क्लोज्ड। यहां से ओपन भी हो गया और क्लोज्ड भी हो गया, प्रूफ। Similarly, in any topological space, empty set and the full space X are always open as well as always closed. प्रॉब्लम आती है उसके प्रॉपर सबसेट पे। तो हमारा सारा डिस्कशन का जो मुद्दा होगा वो प्रॉपर सबसेट है ना, वो तो ट्रिवियली ओपन क्लोज्ड होते हैं। वैसे मैंने बता भी दिया क्यों होते हैं, आप खुद से देख लो यहाँ पे एम्प्टी, इस वजह से यहाँ लिखा नहीं। यस अच्छा, इसके ऊपर फोर्थ वाले क्वेश्चन में, हाँ ये कह सकते हैं कि फोर्थ वाले क्वेश्चन में वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट 5 मुझे, लेकिन चाहो तो 5 देख लो, 5 में कोई सबसेट ऐसा होगा ही नहीं जो इसका लिमिट पॉइंट होगा। आप वैसे भी चेक कर सकते हो, तो 5 का क्लोजर 5 होगा। हाँ
सर इस टोपोलॉजी में जो होल स्पेस एक्स है सर वो क्लोज्ड कैसे है सर? ये देखो इनका क्वेश्चन क्या है, इनका ये कहना जब 5 ने प्रूफ कर दिया ओपन भी होगा क्लोज्ड भी। अब इसमें ये क्वेश्चन है कि ये जो x है वो क्लोज्ड कैसे होगा? सर 5 ओपन है, उसका कॉम्प्लीमेंट x Very आएगा, good, बिल्कुल इसीलिए वो क्लोज्ड। ठीक है ना, मिल गया। देखो जुनैद ने बिल्कुल सही आंसर दिया, 5 ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? x क्लोज्ड हो गया। सो इन एनी टोपोलॉजिकल स्पेस द एम्प्टी सेट एट द फुल स्पेस x इज ऑलवेज ओपन ऑलवेज क्लोज्ड। थोड़ा सा डिस्कशन करोगे ना आपको खुद चीजें समझ में आने लगेगी। लेकिन ये है कि ट्रिवियल केसेस भी कम से कम एक दो बार डिस्कस कर लें, ये नहीं कि 5 और x सिर्फ डेफिनेशन याद कर लिया, आपको यहीं से आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गया ना x क्यों क्लोज्ड होगा? हाँ सर। ठीक, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन does इज, not belongs to B है कैसा है सर? हाँ क्या कह रहे हैं? A does not belongs to B. B is a such type of subset of X which contain A, but here A does not belongs to B. नहीं मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब U X का सबसेट है हम्म, और ऐसा सबसेट है कि हर सबसेट में A कंटेन होना चाहिए। तो वो ओपन होगा। हाँ सर ठीक है, बट यहाँ B जो सबसेट ऑफ X लिया है तो B में A कंटेन होना चाहिए, बट A और लिखा है A does not belongs to B. अरे ये आर्बिट्री सबसेट है ना, जब मैंने ओपन नहीं कहा ना, ये तो आर्बिट्री सबसेट लिया। अगर मैं ओपन कहता कि लेट बी बी एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स, तब इट हैज टू ऑलवेज कंटेन ए। कोई जरूरी थोड़ा ना ये ऑलवेज ओपन हो, तो इसके बाद दोनों चॉइस बनेंगे ना। आपने क्या ये लेक्चर, ऐसा डिफाइन किया है कि ऐसा सबसेट लिया है कि जहाँ A कंटेन है। क्या नाम है आपका? जकारिया अहमद। जकरिया। देखो जकरिया, ऐसा है कि अगर आप ओपन सेट लेके चलोगे तो फिर दैट सेट हैज टू कंटेन एज पर डेफिनेशन, लेकिन आर्बिट्री सबसेट के बारे में नहीं मालूम ना। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लेट बी। डिफाइन ऐसा ही किया ना, X में ऐसा ही डिफाइन किया है सेट सबसेट। अरे वो तो ठीक है, लेकिन वो किसके लिए डिफाइन किया? ओपन सेट के लिए, आर्बिट्री सेट के लिए थोड़ा ना है। आप कह सकते हो बी क्या है? ऑलवेज ओपन। एक सा कोई सबसेट ले लो बी, विल इट बी ऑलवेज ओपन? क्या वो कोई सबसेट हमेशा टोपोलॉजी का मेंबर होगा? कोई जरूरी है? पावर सेट होता तो कह लेते, क्योंकि वो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट होता, लेकिन हर एक सबसेट को कैसे कह दोगे टोपोलॉजी का मेंबर होगा? आपको नहीं समझ अभी। चलो एक काम करो, एक्चुअल में आप लोगों को इस तरह, जब अभी आदत आपकी वो है ना कि फाइनाइट सेट दे के और मैं काउंटिंग कराऊं, तो अब चलो कोई बात नहीं, सवाल पूछा तो लेट मी आंसर इट। लेट बी, यहां देखो नोटिस करो लैंग्वेज, लेट बी बी अ सबसेट ऑफ एक्स। इसके पहले मैंने यहां जो यू लिखा था, लेट यू बी एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स, तो यहां ओपन लेके चले तो ठीक है, इट विल ऑलवेज कंटेन ए, इट विल ऑलवेज कंटेन ए। लेकिन जब आर्बिट्री सबसेट लेके चला तो हो सकता है टोपोलॉजी का मेंबर हो सकता ना हो, तो देन इट हैज टू पॉसिबिलिटीज, देन इट हैज टू पॉसिबिलिटीज, two possibilities means either A belongs to B or A does not belongs to B। लेकिन अगर ये ओपन होता, B ओपन होता, तो सिर्फ ये पॉसिबिलिटी होती A belongs to B। ठीक है सर। अच्छा, अगर नहीं समझ में आया तो एक काम करो, जैसे मान लो वो देखा था ना x इज इक्वल टू, मान लो ऐसे ले लो 1 2 3 1 2 ले लो, ठीक है, और इस पे एक टोपोलॉजी बना लो, ठीक है, 5 ले लो और 1 ले लो और x ले लो, ठीक है ना। देखो टोपोलॉजी बनाएगा, ये यूनियन भी है यहाँ पे और इंटरसेक्शन भी लेंगे, हाँ टोपोलॉजी बनाएगा। अब ये बताओ, मैं एक सबसेट ले रहा हूं b इज इक्वल टू सिंगलेटन 2, ये x का सबसेट है कि नहीं? यस सर। क्या ये सबसेट 1 को कंटेन कर रहा है? मैं एक बात कह रहा हूं, क्या हर एक सबसेट ओपन होना जरूरी है? ओपन वो मेंबर्स होते हैं ना जो टोपोलॉजी के मेंबर्स हों। यस सर। तो सिंगलेटन 2 तो यहाँ है नहीं, सो इट कैन बी ओपन, इट मे नॉट बी ओपन। हमने कोई एक आर्बिट्री सेट कहा, हमने, मैंने ये नहीं कहा यहाँ पे कि सेट कैसा है, ओपन है। अगर मैं ओपन कहता, जैसे यस सर, अभी समझ गए। है ना, तो आप डेफिनेशन गौर करो हमेशा कि क्या यहाँ आर्बिट्री सबसेट लिखा हो, यहाँ ये नहीं लिखा ओपन। आपको ये शो करना है हर एक सबसेट या तो ओपन होगा या क्लोज है, ये मुझे शो करना, लेकिन सबसेट हम आर्बिट्री लिख चलते, तो हम दोनों केसेस बनाएंगे, आइदर इट विल, तो सो बिकॉज एज दिस वन इज आर्बिट्री सबसेट ऑफ एक्स,
सो आइदर इट विल कंटेन ए और इट मे नॉट कंटेन ए, Yes. है ना। चलिए कोई बात नहीं, डाउट हो स्टार्टिंग लेक्चर्स में ही होते हैं तो आप पूछ लिया करें। अगला देखें, शो दैट ओनली CL ओपन सेट, CL ओपन मींस क्लोज्ड ओपन, I mean those sets which are closed as well as open. Show that the only closed open sets are phi and x in this particular point topology. Show that the only open sets are empty space and the full space x, and there are no proper subsets which are open as well as closed. ये शो करना है। इस रिजल्ट का बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है बेसिकली जब आप कनेक्टेडनेस पढ़ोगे तो वहां पे, क्योंकि अगर कोई सेट कनेक्टेड है सो इट विल कंटेन नो प्रॉपर सबसेट व्हिच आर ओपन एज वेल एज क्लोज्ड, तो ये रिजल्ट वहां पे आपका डायरेक्टली यूज होगा। इस वजह से ये क्वेश्चन 5 जो है, क्वेश्चन 5 दिस वन इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 6, तो चलिए क्वेश्चन 6 बताएं कैसे प्रूव करेंगे क्वेश्चन 6। क्लोज और ओपन पे होंगे x5 और x। क्वेश्चन 5 से तो ये सर आधा प्रूव हो गया, अब हम ट्रिवियल केस को प्रूव करना है। नहीं, मुझे ये प्रूफ करना है ना कि कोई नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट जो होगा वो दोनों नहीं होगा सर, क्योंकि 5 ओपन तो हो सकता है लेकिन क्लोज इसलिए नहीं हो सकता। हाँ क्यों? कॉम्प्लीमेंट ए, उसमें ए नहीं होगा तो टोपोलॉजी बना नहीं सकता वो। हाँ ये भी कह सकते हो, ठीक है। ठीक है, जैसे हमने कोई आर्बिट्री सबसेट लिया, लेकिन यहाँ पे पहले आपको लेना है कि एक्सेप्ट फाई एंड एक्स मींस यू हैव टू टेक सम सेट C as a subset of x, but C is not equal to phi and C is not equal to x, ये लेके चलना है। मान लो C कोई सबसेट x का, या ऐसे नोटेशन ले लो C is प्रॉपर के लिए तो सिर्फ x की, हाँ ये सही है। मुझे ये प्रूफ करना है कोई भी प्रॉपर सबसेट दिस विल बी नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड। सर क्वेश्चन नंबर 5 तो वही इंप्लाई करता है ना सर? नहीं फर्क है, देखो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 में फर्क है, ये और का आप लोग नहीं समझे। कोई भी सबसेट यहाँ पे या तो ओपन होगा या क्लोज, यहाँ पे दोनों ये कह रहा है ना कि कोई भी सबसेट दोनों नहीं होगा। यहाँ पे कि ओपन है तो या तो ओपन होगा या क्लोज्ड होगा, है ना, या तो ओपन होगा या क्लोज्ड होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, कोई भी सबसेट दोनों नहीं होगा, कोई भी प्रॉपर सबसेट मतलब ओपन और क्लोज दोनों नहीं होगा, ये मुझे प्रूफ करना है। डिफरेंस है, यहाँ पे हमने प्रूफ किया ओपन होगा या क्लोज होगा, लेकिन दोनों की बात नहीं हुई। जैसे अगर मैं ये प्रूफ कर देता सेट भी ओपन भी है और क्लोज भी है, या बी कॉम्प्लीमेंट जो है ओपन भी है क्लोज्ड भी है, तो फर्क है दोनों डेफिनेशन में। जैसे मैट्रिक में पढ़ा होगा ना आपने, आर में आर का ये सबसेट ओपन इंटरवल ए बी क्या है, ओपन है बट नॉट क्लोज्ड, ओपन बट नॉट क्लोज्ड। और ये सबसेट क्या है, क्लोज्ड बट नॉट ओपन, बट नॉट ओपन, ठीक है। लेकिन अगर आर पे वही जब डिस्क्रीट मैट्रिक लेते थे, रिकॉल करा दो पीछे पढ़ के आप मैट्रिक में आए, आर पे डिस्क्रीट मैट्रिक लेते थे तो कोई भी सबसेट ले लो इसका, जैसे सिंगलेटन एक्स ले लिया, तो ये सबसेट क्या ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। इनफैक्ट हर सबसेट ओपन भी होगा और क्लोज्ड भी होगा, क्योंकि ठीक है, मतलब ओपन इसलिए होगा कि आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन से ओपन है तो, और सिंगलेटन एक्स है तो हर यूनियन से हर एक सबसेट जनरेट हो जाएगा। तो अगर मैट्रिक चेंज वहां करते थे तो कैसा होता था, कोई सबसेट हो सकता है ओपन क्लोज दोनों हो, लेकिन आर कनेक्टेड होता है, आर कनेक्टेड होता है ना। ये तो मैट्रिक के लेक्चर में आपको बीएससी वालों को मैंने करा चुका हूं, आर कनेक्टेड होता है, इट हैज नो प्रॉपर सबसेट व्हिच इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। आर विथ डिस्क्रीट कनेक्टेड नहीं होता, क्योंकि इसके पास प्रॉपर सबसेट कम से कम एक मिल गया जो ओपन क्लोज दोनों हो। अब वही काम हम और क्योंकि मैट्रिक से टोपोलॉजी जनरेट होती है, तो वहां तो मान लो मैट्रिक पे देखते थे, मैट्रिक से जो टोपोलॉजी जनरेट उस पे, अब यहाँ तो पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि इसका कोई भी सबसेट प्रॉपर सबसेट ओपन क्लोज दोनों नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं से कंट्राडिक्शन चाहिए। एनीवे चलो मैं नेक्स्ट पेज पे प्रूफ कर देता हूं, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे डिस्कशन करते हैं। तो किस तरह टोपोलॉजी डिफाइन थी, इस कलेक्शन ऑफ phi union all those subsets of x such that a belongs to u। ये टोपोलॉजी आपको दे रखी थी ना, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट की ये टोपोलॉजी दे रखी है। आपको क्या प्रूफ करना है कि एनी सबसेट लेट कोई नोटेशन ले लो,
ठीक है, चलो यू ही ले लो जो भी, लेट यू बी, लेकिन यू एक्चुअल में कंफ्यूज करता है ना, यू कोई आप यू लेने का मतलब ओपन है, जबकि वहां पे आर्बिट्री सबसेट है ना। लेट यू बी, या ले भी सकते हो, क्योंकि अगर ओपन नहीं, पहले से कैसे अज्यूम कर, लेट यू, चलो नोटेशन चेंज कर दो, लेट सी बी, सी क्या जगह डी ले लो, लेट डी बी सबसेट ऑफ एक्स सच दैट डी इज नॉट इक्वल टू 5 एंड d is not equal to x. In fact, let d be proper subset of x. Let d be a proper subset of x. Then to show that d is neither open nor closed, sorry, d is not CL open. CL open, CL open means closed open. तो क्या प्रॉब्लम होगी, सपोज करो ये क्लोज्ड ओपन दोनों है, तो क्या प्रॉब्लम होगी। सो ऑन कंट्रेरी assume that, नेगेशन वाला कैसे प्रूफ करते हैं, कोई स्टेटमेंट एज्यूम कर लो, उसका नेगेशन दिखा दो, तो जो एज्यूम किया उसका अपोजिट ट्रू हो जाएगा। सो ऑन कंट्रेरी एज्यूम दैट डी इज बोथ ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। एज्यूम कर लो कि मान लो डी ओपन भी है क्लोज्ड भी है, तो अब कहीं ना कहीं से आपको कुछ कंट्राडिक्शन चाहिए कि ये एजम्पशन हमारा सही नहीं है। सिंस D is open, this implies D complement is closed, ये तो हमेशा ट्रू होता है। अब हम यहाँ एज्यूम करके चल रहे हैं ना कि ओपन भी है और क्लोज्ड भी है, तो D अगर ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज्ड। डाउट तो नहीं है ना किसी को? नो सर। और अभी पहले हमने एक रिजल्ट यूज किया था कि एवरी ओपन सबसेट ऑफ this topology, particular point topology except empty sets are dense in X, किया था। सर ऐसा हम कर सकते हैं क्या, D is open so phi belongs to D, but here we have taken phi not equal to D, contradiction आ गया। क्या मतलब, कैसे कंट्राडिक्शन आ गया, कहां से D 5 is- बिलोंग्स, यहाँ पे आप लिखा है since D is open, नहीं एक मिनट पहले आपने क्या कहा, 5 बिलोंग्स टू D, विल इट मेक सेंस? phi belongs to T सर। अच्छा T, तो 5 बिलोंग्स टू T से क्या मतलब, यहां से इससे ये तो phi D open आप है, D नॉट इक्वल टू 5 लेके चल रहे हो, तो फिर जब आप ये लेके चल रहे हो, आपने प्रॉपर सबसेट लिया है, तो फिर ये 5 बिलोंग्स टू T का क्या सेंस? phi belongs to T का मतलब phi open है। हाँ, तो फिर उससे क्या क्या होगा, ओपन है तो क्या प्रॉब्लम है, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो, बताओ अपनी पूरी बात तो बताओ तब तो। यार since D is open लिखा है। हाँ, ये तो हमने अज्यूम किया है ना, अज्यूम वर्ड देखो ना यहाँ पे। हाँ नेक्स्ट लाइन में D is open लिखा है, हाँ, तो phi open होगा। 5 कहाँ से लेना है, 5 तो ओपन है, तो उसमें मतलब आप कैसे कंट्राडिक्शन पहुंच रहे हो, बताओ पूरी बात बोलो, क्या कह रहे हो। लेट जहां लिखा है वहां पे तो D नॉट इक्वल टू 5 लिखा है ना, तो यहाँ पे D इक्वल टू 5 मिल रहा है। Since D is open, phi is also open, so phi is equal to D. बाकी लोग क्या कहना चाह रहे हैं। सर ऐसा थोड़ी होगा, बहुत से ओपन सेट कोई जरूरी थोड़ी है फाई उस डी के इक्वल ही हो। अच्छा ये बताओ, क्या नाम है आपका, जकरिया? यस सर। जकरिया ये बताओ कि आपने प्रॉपर का मतलब क्या हो गया, जब आपने प्रॉपर कह दिया तो फिर डी इक्वल टू 5 क्यों ले रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, क्या आपने बिल्कुल बेसिक सेट थ्योरी नहीं पढ़ी है? जब आप एक बार एज्यूम करके चल रहे हो कि हमने प्रॉपर सबसेट ले लिया, तो फिर डी को 5 क्यों ले रहे हो? प्रॉपर का क्या मतलब होता है? फाई और एक्स को छुड़ा कर सर, तो जब आप पहले प्रॉपर सबसेट लेके चलो, तो क्यों आप फिर डी को 5 से कंपेयर कर रहे हो? चलो देखो, कम से कम अभी आप एज्यूम कर किया ना कि आपने एक तो लिया कि हम प्रॉपर सबसेट लेके चल रहे हैं, साथ में ये एज्यूम किया कि सपोज करो कि सीएल, हम एक्चुअल मुझे प्रूफ करना है कि
D is not CL open. So on contrary, we have assumed that D is both open as well as closed. तो आपको कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन शो करना है. इसका मतलब जो आप एज्यूम करोगे उसके अपोजिट ट्रू होगा. मतलब आपने एज्यूम किया था D is not CL open, sorry, D is both open as well as closed, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा. इसका मतलब D is not both open and closed. कोई एक हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होगा. ठीक है, देखो कोई बात नहीं, अपने डाउट है, जो भी डाउट है पूछा करें, है ना. तो हमने पहले एज्यूम कर रखा है कि D is not equal to 5, तो वहां पे हम 5 को लेके बात नहीं करेंगे. और 5 तो ऑब्वियस है, ये तो टोपोलॉजी का कोई भी मेंबर होगा वो तो ऑब्वियस होता है. हमें तो ये शो करना कोई प्रॉपर सबसेट लेके चल रहे हैं, तो वो ओपन एस क्लोज नहीं होगा. 5 और x पे तो डिस्कशन नहीं करना ना, हमें तो प्रॉपर सबसेट के लिए डिस्कशन करना. आप क्वेश्चन फिर से पढ़ें, वहां प्रॉपर सबसेट लिखा हुआ है. एनीवे, सिंस D is open, so this implies D complement is closed. In fact, since D is closed, because we have assumed, ये क्यों since लगा रहा हूं, क्योंकि हमने assume किया है. This implies D complement is also open. ये तो बाय डेफिनेशन है ना, कोई भी सेट अगर आपने ओपन एज्यूम किया तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, क्लोज्ड, और क्लोज्ड एज्यूम किया तो उसका कॉम्प्लीमेंट, सो डी कॉम्प्लीमेंट इज बोथ सीएल ओपन. दिस इंप्लाइज दैट डी कॉम्प्लीमेंट इज सीएल ओपन. सीएल ओपन मींस क्लोज्ड एज वेल एज ओपन. ठीक है ना. ये लेकिन ये अभी एज्यूम किया है, ये मैंने एज्यूम किया है ना, एज्यूम वर्ड पढ़ो यहाँ पे, ये एज्यूम किया है. अब प्रॉब्लम क्या होगी ये बताओ कि अभी आपने क्या देखा था, हमने इससे पहले रिजल्ट प्रूव किया था. सिंस ऑल नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट्स आर डेंस इन, सिंस ऑल नॉन एम्प्टी एक्सेप्ट एम्प्टी सेट एवरी ओपन सबसेट इज डेंस इन ए. सिंस ऑल नॉन एम्प्टी, ये प्रूफ मैं कर चुका हूं, और डेंस इन टी. टी मतलब जो टोपोलॉजी दी की गई है उसकी बात कर रहे हो. देखो अब ये आपको कहां से मैंने स्टेटमेंट ले लिया, इसके जस्ट ऊपर देखो, आप अभी प्रूफ किया था ना यहाँ पे. देखो, शो दैट एनी सबसेट ऑफ, सॉरी, ये फोर्थ रिजल्ट देखें, डिड्यूस दैट ओपन सेट्स एक्सेप्ट 5 आर ऑल डेंस इन टी. हर ओपन सेट, एम्प्टी सेट को छोड़ के हर एक ओपन सेट डेंस होता है. इस रिजल्ट को यूज करो वहां पे. अभी हमने जो प्रूफ किया कि ओपन सेट डेंस होंगे, है ना. सो सिंस ऑल ओपन सेट्स आर डेंस इन एक्स, सिंस ऑल नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट्स आर डेंस इन टी. तो देखो ये डी को आपने ओपन भी अज्यूम किया और नॉन एम्प्टी है, डी को नॉट इक्वल टू 5 लिया है ना, नॉन एम्प्टी, तो वो भी क्या होगा, उसका भी क्लोजर कितना होगा, फुल स्पेस होगा. दिस इंप्लाइज क्लोजर ऑफ डी इज इक्वल टू एक्स इटसेल्फ. लिख सकता हूं मैं यहाँ पे. यस सर. अब ये बताओ डी का क्लोजर कितना आ गया, एक्स आ गया. अच्छा, फ्रंटियर का डेफिनेशन क्या होता है, अगर मान लो मुझे इस सेट का फ्रंटियर निकालना, तो फ्रंटियर क्या होता है, फ्रंटियर ऑफ डी बाय डेफिनेशन ये क्या होता है, डी का क्लोजर और उसके कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर के साथ इंटरसेक्शन. तो कितना हो गया, अब ये बताओ कि डी का क्लोजर कितना आ गया, एक्स. अच्छा, यहां पे ये बताओ कि ये आपने दोनों एज्यूम किया ना, डी कॉम्प्लीमेंट भी तो ओपन हुआ यहाँ पे और नॉन एम्प्टी होगा. डी, क्योंकि डी नॉन एम्प्टी लिया तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी नॉन एम्प्टी होगा. तो डी कॉम्प्लीमेंट भी नॉन एम्प्टी, इसका मतलब डी क्लोजर का, डी कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर भी फुल स्पेस एक्स होगा. प्रॉपर्टी फोर्थ देखो जो अभी आपको कराया जो प्रॉपर्टी थो, ये वाला कि कोई भी ओपन सबसेट्स एवरी नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट डेंस होगा, मतलब मींस उसका क्लोजर फुल स्पेस एक्स होगा. तो क्योंकि डी भी ओपन है, डी भी ओपन है और डी कॉम्प्लीमेंट भी ओपन है. देखो यहाँ डी भी ओपन है और डी कॉम्प्लीमेंट भी ओपन, तो दोनों का क्लोजर क्या होगा, फुल स्पेस एक्स. और फ्रंटियर ऑफ डी क्या होता है, डी क्लोजर इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर. सो एक्स इंटरसेक्शन एक्स कितना हो गया, एक्स हो गया. एक्स. एक तो ये कंडीशन आपने लिख लिया. अच्छा, ऑन अदर हैंड डी एंड डी, ऑन अदर हैंड डी एंड डी क्लोजर, डी एंड डी कॉम्प्लीमेंट आर आल्सो क्लोज्ड, है कि नहीं. यस सर. डी क्या है, डी क्लोज्ड एज्यूम किया और डी कॉम्प्लीमेंट भी क्या है, क्लोज्ड. तो ये बताओ कोई अगर सेट क्लोज्ड होता है तो उसका क्लोजर क्या होता है, उसी उसके इक्वल होता है. इटसेल्फ.
This implies very good. Closure of D is equal to D and closure of D complement. ये भी D होना चाहिए, ये भी डी होगा, हो ना? तो अगर इससे अगर फ्रंटियर निकालो इस रिजल्ट को यूज करके उनके क्लोजर की प्रॉपर्टी से, तो एज पर डेफिनेशन इट इज इंटरसेक्शन ऑफ डी क्लोजर इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट क्लोजर। तो डी क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, सॉरी डी क्लोजर तो डी हो गया और ये भी इंटरसेक्शन डी हो गया। इसका मतलब ये क्या हो डी गया? हो जाएगा। हाँ नहीं, डी और डी कॉम्प्लीमेंट, तो डी और डी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या होगा? किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन होता है? कुछ भी नहीं, इट इज इक्वल टू 5। एक जगह से फ्रंटियर 5 आ रहा है और एक जगह से फ्रंटियर x आ रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। सेट सेम अगर है तो उसका फ्रंटियर एक जगह से x आ रहा है, सो वी हैव अराइव्ड एट कंट्राडिक्शन। दिस इंप्लाइज दैट व्हाटएवर वी हैव अज्यूम्ड, क्या हमने अज्यूम किया था? हमने अज्यूम किया था कि कोई भी इसका प्रॉपर सबसेट ओपन और क्लोज दोनों होगा, कोई भी प्रॉपर सबसेट ओपन और ये अजम्पशन ट्रू नहीं है, सो वी अराइव्ड एट कंट्राडिक्शन। हाँ सर यहाँ पे डी कॉम्प्लीमेंट सेकंड का लाइन देखिए तो सर, वहाँ पे डी नहीं लिखेंगे सर? हाँ, क्या कह रहे हाँ, हैं सर। बताएं। सर डी डायरेक्ट क्लोजर ऑफ डी तो डी हो गया और उसके कॉम्प्लीमेंट का हाँ क्लोजर जो है वो भी तो डी है। अरे अच्छा, एक काम करो, हाँ कराया था रिजल्ट मैंने, इसलिए कहता हूँ कि आप लोग बार बार डेफिनेशन रिवाइज किया तो। चलो पीछे पता नहीं कहाँ करा दिया था। एनीवे आपको स्टार्टिंग में वो रिवीजन कराया था ना मैं, क्लोजर का डेफिनेशन। अरे कोई सेट अगर क्लोज्ड होगा तो क्या होता है, ए और ए क्लोजर कोइंसाइड करना चाहिए ना। यस सर, ये सर वो पता है सर। पता है, तो इसका तो यहाँ सेट क्या है? डी कॉम्प्लीमेंट ना। देखो A is said to be closed, A is said to be closed if and only if A closer is equal to A। ठीक है ना, ये रिजल्ट है, कराया था। यस सर। तो अब डी, यहाँ डी कॉम्प्लीमेंट क्या है, सॉरी डी कॉम्प्लीमेंट क्या है? क्लोज्ड। मैं डी कॉम्प्लीमेंट पे सोचो, डी कॉम्प्लीमेंट क्या है? क्लोज्ड। इसका मतलब यस सर। डी कॉम्प्लीमेंट को बी मान लो, तो बी का क्लोजर कितना होगा? बी। तो डी का Yes. कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर क्या होगा? डी कॉम्प्लीमेंट ही तो होगा। इसको बी एज्यूम कर लो अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। बी ओके ओके सर। है ना, ठीक है, वो भी सेट थ्योरी, ठीक है, कोई बात नहीं, इस तरह के डाउट होते हैं। तो यहां से देखो कंट्राडिक्शन मिल गया, वी अराइव्ड एट कंट्राडिक्शन। दिस इंप्लाइज our assumption is not true, so contrary to our assumption, none of the proper subset is going to be open as well as closed both। मतलब एक ही साथ दोनों नहीं होगा, हो सकता है ओपन हो तो क्लोज ना हो, क्लोज हो तो ओपन ना हो, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। आई मीन सीएल ओपन नहीं हो सकते। दिस इंप्लाइज none of the no proper subset is CL open। CL open मतलब ओपन क्लोज दोनों एक साथ नहीं होगा। हो सकता है एक हो जाए, ओपन है तो क्लोज नहीं हो, क्लोज है तो ओपन, लेकिन एक साथ। यहीं से ये भी कह सकते हैं कि दिस टोपोलॉजी इज कनेक्टेड, क्योंकि अगर कनेक्टेड की डेफिनेशन याद करो ना, तो कनेक्टेड यही कहता है, अगर सेट कनेक्टेड है तो उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट दोनों नहीं होना चाहिए। इट हैज नो प्रॉपर सबसेट व्हिच इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। तो यहां से अभी मैं कनेक्टेडनेस पे बाद में आऊंगा, लेकिन क्योंकि अब यहाँ रिजल्ट कर रहा था, तो ये बड़ा यूजफुल रिजल्ट है कि दिस इंप्लाइज दैट दिस सेट इज नॉट कनेक्टेड, पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी इज नॉट कनेक्टेड। सर ये रिजल्ट जो है हाँ हर एक सेट और टोपोलॉजी के लिए मतलब ट्रू है? नहीं, हर एक टोपोलॉजी नहीं, सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी, जो टोपोलॉजी दे रखी है। इतनी देर से अगर एक ही रिजल्ट सबके ट्रू होता तो मुझे इतनी क्लासेस लेने की क्या जरूरत होती है? एक ही क्लास में आप टोपोलॉजी खत्म हो जाती। आगे बात समझ में? तो मुझे क्या जरूरत थी बार बार टोपोलॉजी चेंज करके पढ़ाने की? ये मैंने डेफिनेशन यहाँ लिख दिया, बता दिया कि ये सेट कनेक्टेड होता है क्योंकि इसके पास कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है जो ओपन और क्लोज दोनों है। ठीक है ना, जब कनेक्टेडनेस आएगा तो वहां मैं दोबारा लिंक कर दूंगा। लास्ट पार्ट इसे मैं कंप्लीट कर दूंगा। क्या था क्वेश्चन? कोई भी डाउट पूछें वो, और एक दूसरे के आंसर भी देते जाए, कोई जरूरी मैं ही आंसर दूं, आप लोग। ठीक है, ये डिस्कशन का यही वे होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमें ये, अभी ये क्या है? लेट ए बी अ सेट सर कंटेनिंग। आपने जो ये इतना प्रूव कर दिया, इससे ये कह सकते हैं कि ये जो टोपोलॉजी दी है ये इनडिस्क्रीट है।
नहीं नहीं, इनडिस्क्रीट में तो देखो दो ही तरह के ओपन सेट होते हैं ना, फाई और जैसे एक्स। 5 और x, और यहाँ पे जिस हिसाब से हम लोगों ने अब तक प्रूफ किया है 5x ही आ रहे हैं। अरे नहीं, दो ही ओपन सेट होता है ना, यहाँ तो कोई भी ऐसा सबसेट होगा जो ए को कंटेन करना, और भी तो आएंगे ना। ये एक नहीं है, डिपेंड करेगा ए पे, ए के चॉइस पे। अगर मान लो एक्स, ये डिपेंड करेगा ना ऐसे कितने, जैसे मान लो एक्स इक्वल टू आर ले लो, और कोई पॉइंट ए को वैल्यू ले लो 0 या 1 ले लो, तो 1 को कंटेन करने वाले कितने ओपन सेट हैं? इनफाइनाइट है। तो ये एक नहीं है, इसमें इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं। जबकि इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी में सिर्फ दो ओपन सेट होते हैं, फाई एंड द फुल स्पेस एक्स। वहां प्रॉपर की बात ही नहीं करते, यहाँ हो सकता है प्रॉपर भी हो। सो दिस टोपोलॉजी इज नॉट सर इंडिस्क्रीट। लेकिन आपने अभी एक प्रॉपर को प्रूव कर दिया कि कोई भी प्रॉपर सबसेट वो ओपन नहीं हो सकता। तो प्रॉपर सबसेट नहीं, नहीं मैंने ये कहा प्रॉपर सबसेट ओपन क्लोज दोनों नहीं होगा एक साथ, यस सर, अलग अलग हो सकते अलग अलग हो सकता है ओपन हो। देखो फिफ्थ रिजल्ट देखो ना, हो सकता है वो सबसेट ओपन हो तो क्लोज ना हो, क्लोज हो तो ओपन ना हो। तो हर सबसेट को ओपन क्लोज या तो ओपन होगा या क्लोज होगा, लेकिन दोनों नहीं होगा। एक ही ओके सेट सर। ओपन और क्लोज दोनों नहीं होगा। ये फाइनल यहां से निकाला कि पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी का हर सबसेट ओपन भी होगा, ओपन होगा या क्लोज होगा, मतलब उनमें से कोई एक होना चाहिए, लेकिन एट अ टाइम दोनों नहीं होगा। ऐसा क्योंकि बताया था ना सेट थ्योरम, पीछे आपको एग्जांपल दिया था, ऐसे सबसेट हो सकते हैं जो ओपन क्लोज दोनों हो। यस सर। लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी में ये चीज पॉसिबल नहीं है, पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी में ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखो एक तो ये शो करना, शो दैट एवरी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स इज नोवेयर डेंस। नोवेयर डेंस का डेफिनेशन याद है? ये दो पार्ट रह गया है नोवेयर डेफिनेशन का, दोनों एक दूसरे से लिंक हैं। यस एनीवन? सर क्लोजर का इंटीरियर एम्प्टी होता है। हाँ, क्लोजर का इंटीरियर एम्प्टी होता है। वेरी गुड। तो क्लोजर तो हमने लोगों ने देख लिया ना, कोई भी प्रॉपर सबसेट इसका क्या होता है? डेंस होता है। तो कोई भी प्रॉपर सबसेट लेकर अगर उसका क्लोजर निकालेंगे, तो कोई भी प्रॉपर ओपन सेट डेंस होता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है वो ओपन न हो, तो अगर ओपन नहीं होगा तो क्या होगा? क्लोज होगा। तो उसका फिर कॉम्प्लीमेंट पे देखो, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट टोपोलॉजी में क्या होता है, कोई भी सबसेट या तो ओपन होगा या क्लोज होगा, लेकिन एट ए टाइम दोनों नहीं होगा। सर जी ये सब नेक्स्ट चीज, क्लास की टाइमिंग हो गई है। अच्छा चलो इन दो पोर्शन को कल कर लेंगे। चले, अच्छा लगा आज क्लास में आप लोग, लग रहा है कि सो नहीं रहे हैं। देखो जो भी डाउट हो, छोटे से डाउट हो, बड़े डाउट हो सकता है कभी कभी पढ़ाते वक्त, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये मान के चलो बिल्कुल आप जीरो से सीख रहे हो, और जो भी आपको डाउट है पूछ लिया करो, क्योंकि होता है ये चीजें, ये डिस्कशन स्टार्टिंग के लेक्चर्स में होते हैं कि हमें हर, जैसे मैंने बी लिखा है कोई सबसेट, तो हो सकता है मुझे दिख रहा है ओपन, जबकि मैंने ऐसा कहा नहीं ओपन। अगर ओपन कहेंगे तब ये को कंटेन करेगा, वो तो बाय डेफिनेशन है। लेकिन कोई भी आर्बिट्री सबसेट जरूरी थोड़ा ना एक्स का कोई भी आर्बिट्री सबसेट ऑलवेज ओपन हो। सबसेट तो कुछ भी हो सकता है नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड हो। तो इन सर ये डिस्कशंस का क्वेश्चन पूछा है इसलिए क्योंकि x नहीं देखा हमने सर, x नॉट इक्वल टू 5 ये नहीं देखा है हम, नहीं, x वो नॉन एम्प्टी सेट है इसलिए पूछा। इवन एक्स नॉन एम्प्टी होता। अच्छा एक बात देखा बताओ, नहीं अगर प्रॉपर सबसेट कैसे डिफाइन नहीं किया नहीं, है अगर वो क्वेश्चन। आपने देख भी लिया होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसका सबसेट नॉन एम्प्टी लेके चल रहे हो, सुपरसेट हैज टू बी नॉन एम्प्टी। जब हमने कह दिया उसका सबसेट नॉन एम्प्टी लेके चल रहे हैं, सो सुपरसेट हैज टू बी नॉन एम्प्टी। तो आप इन चीजों पे डिस्कशन करना सीखो, ठीक है? यस सर। चलिए तो रिवीजन कर ओके लेंगे इसको, फिर इन दो पार्ट को कल करेंगे। यस सर। ओके। ओके लव अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, और अच्छा वो स्नैपशॉट ग्रुप में भेज देंगे अटेंडेंस की, मैं नोट करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू।